100 करोड़ की साथ करेंगे तो भी घाटा बह जाएगा तुम्हारा। ভারতের 100 কোটি হিন্দু প্রস্রাব করলে ঢাকা ডুবে যাবে। বাংলাদেশিরা এদেশের একজনও হিন্দুকে খুন, অপমান বা হামলা করলে অন্তর্রাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদ বরদাস্ত করবে না বলে হুঁশিয়ারি ছুড়ে দিয়ে তীব্র আক্রমণ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন অন্তর্রাষ্ট্রীয় হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ ভাই তোগাড়িয়া। हम 100 करोड़ हैं, 100 करोड़ की साथ करेंगे तो भी घाटा बह जाएगा तुम्हारा। एक हिंदू के लिए लाखों करोड़ों लोगों को खड़ा करना। ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হবে, আর এই হিন্দু রাষ্ট্রে সাংবিধানিক কোনো পদে মুসলিমরা বসতে পারবে না। পিএম, সিএম, মিনিস্টার, ডিএম, এসপি কোনো পদেই মুসলিমদের ঠাঁই হবে না। করিমগঞ্জ সফরে এমনই মন্তব্য করে চিরাচরিত বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন হিন্দুত্ববাদী নেতা প্রবীণ ভাই তোগাড়িয়া। और प्रवीण तोगड़िया के हिंदू राष्ट्र में मुसलमान किसी संवैधानिक पद पर नहीं होगा, न पीएम होगा, न सीएम, न मिनिस्टर, न जज, न डीएम, न एसपी। রবিবার করিমগঞ্জে এক সভায় যোগ দেন হিন্দুত্ববাদী নেতা প্রবীণ ভাই তোগাড়িয়া। সভা শেষে সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে বিতর্কিত হিন্দুত্ববাদী নেতা তোগাড়িয়া সরকারকে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, নাগরিকত্বের প্রশ্নে হিন্দুদের ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢোকানো হলে তিনি নিজে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করবেন। বিজেপির সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্রকে ঘায়েল করে বলেন, আমি সবকা সাথ সবকা বিকাশের জন্য জন্ম নিইনি। তিনি হিন্দুদের জন্য হিন্দুদের বিকাশ চেয়ে বসেন। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের গণহত্যা ইস্যুকে উস্কে দিয়ে তোগাড়িয়া বলেন, ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হবে, আর তোগাড়িয়ার হিন্দু রাষ্ট্রে একজনও মুসলিম কোনো সাংবিধানিক পদে বসতে পারবে না। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমানে মুসলিম দেশ মালয়েশিয়া বিগত 50 বছর আগেও বুদ্ধিস্ট দেশ ছিল, কিন্তু মুসলিমরা মালয়েশিয়াকে মুসলিম দেশ করে ইসলামী শাসন কায়েম করতে পেরেছে। ভারত কেন পারবে না প্রশ্ন তুলে জনসংখ্যা নীতির উপর শীঘ্রই সরকারকে দিয়ে আইন বানাবেন। কারণ হিন্দুরাও 15 থেকে 20টা সন্তান নেওয়ার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু তারা দেশের বিকাশ ও সমৃদ্ধির স্বার্থে অধিক সন্তান নেয় না। কিন্তু মুসলিমদের দেশের প্রতি কোনো দরদ নেই, তারা অধিক সন্তান নিয়ে থাকে। তাই আইন করে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে হবে মন্তব্য করে নাম না করে বদরুদ্দিন আজমলকে ঠুকলেন তোগাড়িয়া। তিনি দাবি করেন, বাংলাদেশে মুসলিমদের বিতাড়ন করা হবে, আর এতে আজমল ধুবড়ী থেকে নয়, আগামী দিনে বাংলাদেশ থেকেই জয়ী হবেন বলে কটাক্ষ করেন। দুদিনের বরাক সফরে এসে রবিবার করিমগঞ্জে পৌঁছে একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য ছুড়ে দেন তোগাড়িয়া। তিনি বলেন, হিন্দুদের কাছে নথিপত্র না থাকলেও তারা এদেশের নাগরিক, এদেশের নাগরিকত্ব তাদের অধিকার। করিমগঞ্জের নাম উচ্চারণ না করে বলেন, বাংলাদেশের নামে শ্রীভূমির নাম হতে পারে না। তোগাড়িয়া পরোক্ষভাবে করিমগঞ্জের নাম শ্রীভূমি জেলা করার পক্ষে সওয়াল তুলেছেন। वो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, परंतु हिमंता बिस्वा शर्मा वह स्पष्ट हिंदुओं की लाइन असम में ले रहे हैं, और गुजरात के भाषण के दौरान भी गुजरात के लोगों ने वह पसंद किया था। बाकी पक्ष है तो एक के बाद एक सबका क्रम आता रहता है। मैंने तो 2 बातें कही है कि धरती पर हिंदुओं का अपमान नहीं हो सका है, बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए उनको गधे पर बैठकर बांग्लादेश भेज दो 1, उनके घर पर बुलडोजर चला वो 2, और जिस संस्था के कारण वो कट्टरवादी बना है उसका नाम तबलीग जमात है। उन पर इस्लाम जहां शुरू हुआ वो सऊदी अरेबिया में प्रतिबंध है, और प्रतिबंध का रीजन है कि आतंकवाद का प्रवेश द्वार है। तो आसाम में तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगा दो। और चौथा, ये 50 लाख बांग्लादेशियों को ढूंढकर आइसोलेशन कैंप में ले जाओ, तो अगला चुनाव बदरुद्दीन तुबरी से नहीं जीतेगा। सरकार को लेना ही चाहिए। देखो भाई, कोई कहता है मच्छर है, अरे मच्छर काटता है तो मलेरिया होता है। हम मच्छर के लिए स्प्रे करते हैं, भगाते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, मच्छर को हम रखते नहीं है। इसलिए मच्छर है तो भी
नहीं रखना है, मच्छर को छोड़ने की पृथ्वीराज चौहान ने गलती की थी, दिल्ली पर हमेशा के लिए मुस्लिम साम्राज्य आया, तो मेरा विश्वास है कि हिमंता जी मच्छर को भी छोड़ेंगे नहीं, सजा दो, दंड दो, और कोई सॉफ्ट कॉर्नर ऐसे लोगों के प्रति न बताए। और अब तक एक्शन नहीं लिया है वह ठीक नहीं। एक आधा व्यक्ति ने कहा, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं देना है। कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वो आंखें देखने वाले 4 लाख कश्मीरी हिंदू देश में फैले हैं। इसलिए हमें नरसंहार हुआ या नहीं, उसके लिए इजरायली से थोड़ा सर्टिफिकेट चाहिए। वो 2 बातें हैं, हिंदू विकास चाहता है, समृद्धि चाहता है, अच्छी शिक्षा चाहता है। जनसंख्या बढ़ेगी तो यह सब कम होगी, गरीबी बढ़ेगी, शिक्षा कम होगी, रोजगार कम होगा। तो हिंदुओं ने समझकर जनसंख्या नियंत्रण किया है। उनका अर्थ यह नहीं कि हम बच्चे नहीं पैदा कर सकते। आज भी 15-20 बच्चे पैदा करने की क्षमता वाले सभी हिंदू है। हमने देश हित में यह किया है। मुसलमान मान नहीं रहा है तो कानून बनाओ, जो मैंने कहा जनसंख्या नियंत्रण का, और कानून बनने के बाद 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, उनको सरकारी अन्न नहीं, सरकारी हॉस्पिटल स्कूल में सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, रोजगार नहीं, वोट नहीं डालने दो। यह केंद्र सरकार को करना ही होगा। हम करवाएंगे। जैसे डंके की चोट पर राम मंदिर बनाया है, ऐसे जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर मुसलमानों की जनसंख्या हम नियंत्रण करवाएंगे ही। और हम मर्यादित बच्चा पैदा करते हैं, वह हमारी कमजोरी नहीं है, हमारे दिल में देशी हित है। मैं तो डॉक्टर हूं, हमारे वीर्य में भी इतने ही लाख शुक्राणु हैं जो दूसरे के वीर्य में होते हैं। कोई बच्चा पैदा करने की क्षमता पर अंधेरे में न रहे। अभी सरकार को प्रेशर नहीं करेंगे, 2-4 साल के बाद। अभी पहला प्रेशर जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाओ, दूसरा प्रेशर होगा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। और प्रवीण तोगड़िया के हिंदू राष्ट्र में मुसलमान किसी संवैधानिक पद पर नहीं होगा, न पीएम होगा, न सीएम, न मिनिस्टर, न जज, न डीएम, न एसपी। और यदि एक मलेशिया नाम का देश है जो 50 साल पहले बुद्धिस्ट मेजोरिटी था, आज संविधान बदलकर इस्लामिक राज्य बना है, तो प्रवीण तोगड़िया को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई कठिनाई नहीं आने वाली। मैं इसलिए भारत के 20 करोड़ हिंदू परिवारों में से एक ही वर्ष में 5 करोड़ परिवारों तक पहुंच रहा हूं, उनके घर में जा रहा हूं। फिर प्रवीण तोगड़िया हाथ खड़ा करेगा, उस दिशा में देश खड़ा हो जाएगा। आजकल बाकी देश में जितने हिंदू है वह सबसे मेरे स्नेह के संबंध है, वह किसी भी दल में है। हिंदू है वो मेरा है, हिंदू नहीं वो मेरा नहीं है। मैं सबका साथ, विकास वाला नहीं हूं, हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विकास। अपने पहले हिंदू जो है वह सब मेरे हैं, मोदी जी भी मेरे हैं, हिमंता शर्मा भी मेरे हैं, और कांग्रेस में जाकर कोई साष्टांग दंडवत करेगा महाकाल वह भी मेरे हैं। मैं सबका साथ विकास के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं सिर्फ हिंदुओं का साथ विकास रक्षा के लिए ही पैदा हुआ हूं। मुझे कोई शर्म नहीं है, संकोच नहीं है। इसलिए मेरे हिंदू राष्ट्र में हिंदू के अलावा कोई पीएम, सीएम, मिनिस्टर, डीएम, कलेक्टर, एसपी नहीं होगा। वह संविधान में लाऊंगा और उसमें कोई शर्म नहीं आएगी। यदि मलेशिया को यह संविधान बनाने में शर्म नहीं आई, पाकिस्तान को नहीं आई, तो प्रवीण तोगड़िया को क्यों आएगी भाई? कोई सबका साथ नहीं, हिंदुओं का साथ। ये देश हिंदुओं का है, हम उसके बेटे हैं, देश हमारा है। एक भी हिंदू, वह बंगाली होगा, असमिया, नेपाली, वह डी वोटर नहीं है। उनको डी वोटर नहीं बनाया जाए, और बनाते हैं तो आंदोलन करने के लिए सड़कों पर हम उतरेंगे। जब गलत एनआरसी का रिपोर्ट आया, जब बांग्लादेशियों को भारत का सिटीजन बनाया, तब आसाम बंद हमने ही दिया था, यहाँ भी आपने बंद रखा था। इसलिए कोई भी असमिया, बंगाली, नेपाली हिंदू को डी वोटर बनाया, हम आंदोलन करेंगे। फिर कोई संकोच नहीं करो, और हम आंदोलन करेंगे। हमारी आसाम में ताकत है गांवों तक। मुझे कोई पार्टी नहीं दिखाई देती है, दाढ़ी टोपी नहीं दिखाई देती, मुझे हिंदू ही दिखाई देता, बाकी दिखाई नहीं देता। इस साल वो भी तो हिंदू बन के घूम रहे हैं। अच्छी बात है ना। तो प्रवीण तोगड़िया का विजय है। देखो, कोई कहता है कि नोट पर लक्ष्मी जी के फोटो छापो, कोई महाकाल में जाकर साष्टांग दंडवत
कोई हमारे हिमंता शर्मा जय श्री राम बोलते हैं तो राहुल गांधी जय सिया राम बोलते हैं। राम तो बोल रहे हैं ना भाई, वो तो ये कह रहे हैं ये कि प्रवीण तोगड़िया का 50% विजय हो गया है। कोई जय श्री राम, कोई जय सिया राम। राहुल तो कह रहे हैं आप लोग जय सियाराम नहीं कहते, आप लोग सिर्फ जय श्री राम कहते हैं। अरे ठीक है, राम तो दोनों बोल रहे हैं ना। तो राम बोलने वाले सब मेरे हैं, रावण बोलने वाला मेरा नहीं है। कर रहे हैं। भी हिंदू के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी भारत की नागरिकता का अधिकार ये नागरिकता संशोधन कानून के बाद है। हिंदुओं को कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, उनको भारत की नागरिकता नहीं है तो दी जाए। ये नागरिकता संशोधन का इसलिए जितने माने आइसोलेशन कैंप में हिंदू है सबको तत्काल मुक्त करें, वरना हम आंदोलन का रास्ता लेंगे। आपने जो हमारा इसी नाम के एक बांग्लादेशी मियो के नाम पर है, वो यहाँ का था ही नहीं। और जो कायरो की औलाद व करम चौधरी थे, तो कायरो की औलाद के नाम पर मेरी श्री भूमि का नाम हटकेश्वर भगवान की भूमि का नाम कैसे रहे? बांग्लादेशी कायर हमें नहीं चाहिए भाई। এখনকার মতো সংবাদ এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ।